سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ سپریم کورٹ ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت بھی آج کرے گی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کیس سنے گا۔ بار کونسل کا جوڈیشل کمیشن کی مکمل حمایت کا اعلان، اجلاس کے خلاف ہڑتال کی کال مسترد کر دی، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، کے بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کچھ نام نہاد شرپسند عناصر قانونی برادری میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم قانونی برادری کے منتخب نمائندے عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے۔ ہم ایسی ہڑتالوں کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہڑتال پہلی کی طرح ایک دفعہ پھر ناکام ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے۔ کمیشن کے رکن علی ظفر کا مطالبہ، 8 ججز کی تعیناتی پر سینیٹر علی ظفر کا چیف جسٹس کو خط۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کے تنازع کا حوالہ لکھا، سینیورٹی کا معاملہ حل ہونے تک اجلاس مؤخر کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز بھی اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست کر چکے ہیں۔ یہ تاثر ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بش حبیبی کی اپیلوں کے لیے یہ بندوبست کیا گیا ہے۔ کمیشن اگر اجلاس کرنا ہی ہے تو ٹرانسفر شدہ ججز کو زیر غور نہ لایا جائے، اس کے عدالتی نظام پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم میں گروپ بندی پر کارکن ناراض، گورنر کامران خان ٹیسوری کے معاملے پر پارٹی 2 حصوں میں تقسیم۔ خالد مقبول صدیقی نے کامران ٹیسوری کے پلڑے میں وزن ڈال دیا، بولے کامران خان ٹیسوری کہیں نہیں جا رہے، وہ ایم کیو ایم کے گورنر ہیں اور سندھ کے گورنر رہیں گے۔ مجھ سمیت پوری پارٹی کو ان پر اعتماد ہے۔ گزشتہ روز کے تنظیمی عہدوں کی تقسیم پر جھگڑے کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار اور انیس قائم خانی کی زیر صدارت ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی شریک، مصطفیٰ کمال اجلاس ختم ہونے کے بعد بہادر آباد پہنچے۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار نے کہا کہ گورنر سندھ اور مصطفیٰ کمال کے خلاف مظاہرے شرپسندی تھے۔ مظاہرین کے چہرے واضح ہیں، تحقیقات کر کے تعدیبی کارروائی کریں گے۔ اختتام اچھا ہو تو سب اچھا ہوتا ہے۔ سعید غنی کا کامران خان ٹیسوری کو پارٹی کے اندر کی مخالفت پر توجہ دینے کا مشورہ، کہا کہ کراچی نفرت کی سیاست کی بھیٹ چڑھ گیا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی۔ ہم نے سیاست کرنی ہے تو عوام کی سیاست کرنی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جماعت کے سوا آپ کو کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ پیپلز پارٹی جب قائم ہوئی تو پنجاب میں زیادہ مضبوط تھی، رنگ و نسل کے تعصب سے بالاتر ہو کے عوامی خدمت کی۔ کراچی میں لوگوں کے مسائل ہیں، قوموں کے نہیں۔ عوامی مسائل حل کرنے میں پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نہیں۔ صوبائی حکومت کے وزراء لاچار اور مجبور ہیں۔ بلدیاتی محکمے نااہلی اور بد انتظامی کے ریکارڈ بنانے میں مصروف ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کا سعید غنی کے بیان پر رد عمل، کہا وزراء اپنے محکمے میں ایک نائب قاصد نہیں لگا سکتے۔ محکمہ بلدیات سندھ ٹھیکوں پر چل رہا ہے۔ سالڈ ویسٹ کے ڈمپرز شہریوں کو 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ ہی ختم کر سکتی ہے، تب تک معاملات اس کے تحت ہی چلیں گے۔ بینچز اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر کا آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق، 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری، لکھا قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے، کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ 26ویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ ہم اس ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے، ترمیم چیلنج ہو چکی اور فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ آئینی تشریح کم از کم 5 رکنی بینچ کر سکتا ہے اور کسی ریگولر بینچ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو اختیار موجود آئین میں نہیں ہے۔ ٹیکس کیس میں 2 رکنی بینچ کے بنیادی حکم نامے واپس ہو چکے، اس کے بعد کی ساری کارروائی بے وقت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے 1 سالہ دور اقتدار میں حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری تنظیم مشل نے پاکستان میں اصلاحات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ شہباز شریف دور میں کی گئی 120 سے زائد اصلاحات کی جائزہ رپورٹ کے مطابق وفاقی ملازمتوں میں 1,50,000 ملازمین کی کمی کی گئی۔ حکومتی بورڈز میں 33% خواتین کی شمولیت کو لازمی قرار دیا گیا۔ افراط زر دسمبر 2024 میں کم ہو کر 4.1% تک آ گیا۔ زر مبادلہ ذخائر 4.4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 11.37 بلین ڈالرز ہو گئے۔ تجارتی خسارہ 27.4 ارب ڈالر سے کم ہو کر 17.5 ارب ڈالر پر آ گیا۔ پینشن ریفارم سے آئندہ 10 برس میں 1.7 ٹریلین روپے کی بچت ہو گئی۔ پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ قومی ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم کا آغاز ہوا۔
इंतखाबात को 1 साल गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 70% शिकायत का ताहाल फैसला नहीं किया। फाफन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के ट्रिब्यूनल्स ने 51 में से 41 दरखास्तों पर फैसला सुनाया। पंजाब के ट्रिब्यूनल्स ने 192 में से 45 दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। सिंध के ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से 17 और खैबर पख्तूनख्वा के ट्रिब्यूनल्स ने 42 में से 9 दरखास्तों के फैसले किए। कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुतालिक 123 में से 25 दरखास्तों पर फैसला हो चुका। सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 248 में से 87 दरखास्तों का फैसला सुनाया जा चुका। सुप्रीम कोर्ट में 38 ट्रिब्यूनल फैसलों को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 3 अपीलों पर फैसला सुनाया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर सरदार एजाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सिविल कोड्स तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश करेंगे। पाकिस्तान साहिली मुहाफ़िज़ीन तरमीमी बिल 2002 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में वक्फ़ा सवालात के अलावा 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। जनकोस के मुलाजमीन से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सवात रीजन के रिहायशियों को नए गैस कनेक्शन से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने इनसे नाराज़गी की कोई बात नहीं की। इनके दिल में क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। दीगर सूबों की हुकूमतें हमारे साथ बैठ कर मनाजरा कर लें। पार्टी के अंदर हर हल्के में मुखालिफत होती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सियासी जमातों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। हम सिर्फ सबूत पर यकीन रखते हैं, बातों पर नहीं। पीटीआई का यौम स्याह बुरी तरह नाकाम हुआ। आवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। इनसे तो हमारा एक यूनियन काउंसिल का जलसा बड़ा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून की कोशिशों से खिज़ां के बाद बहार आई। एक दौर था जब लाउड स्पीकर पर मुखालिफिन को पुकार कर पगड़ियाँ उछाली जाती थीं। कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं को मुश्किलों में डाला गया। नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान ने बहुत सख्तियाँ काटी। पार्टी के लिए खून पसीना और कुर्बानियाँ देने वाले कारकुनान और इनके ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पुरअमन एहतजाज करने पर भी FIRs काटी जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान से जल्द मामला तय हो जाएंगे। सूबाई सदर PTI जुनेद अकबर की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा हमें दीवार से लगाया जाएगा तो एहतजाज के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। पहले दिन से कह रहे थे कि इनसे मुज़ाकरात होंगे जिनके पास इख्तियार है। मौजूदा हुकूमत की कोई औकात नहीं जो हमें मुज़ाकरात की ऑफर कर सके। मुज़ाकरात में शामिल होकर हम इन लोगों को एक्सपोज करना चाहते हैं। हमारे कारकुनान पर दोबारा नए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। कोई हम पर ज़बरदस्ती अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं कर सकता। बानी PTI और पार्टी को ख़त्म करने का मंसूबा पूरी तरह फ्लॉप हुआ। हमारा मुतालबा है कि छीना हुआ मैंडेट या नए इलेक्शन कराए जाएं। पार्टी में जिन लोगों की कारकर्दगी पर सवाल होगा इनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेंगे। सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगाने के बावजूद सबाबी जलसे में 5000 लोग जमा ना हो सके। जुनेद अकबर अपने पहले इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि पंजाब के किसी ज़िले से लोग नहीं निकले। जो निकले वो भी सिर्फ दिखावे के लिए गिरफ्तारियां देने आए ताकि बानी PTI के सामने नंबर बना सकें। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। मरियम नवाज जल्द खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी स्कॉलरशिप फराहम करेंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के इस समुंदर ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत के मैंडेट चोरी पर मोहरे सख्त लगा दी है। मुल्क भर के अवाम ने वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवामी हक़ीक़ी आज़ादी के लिए बानी चेयरमैन के शाना बशाना खड़े हैं। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की तालीमी असनाद की तस्दीक का ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम मुतारिफ। IBEC ने तस्दीक के लिए सरबमोहर लिफाफों में दस्तावेज़ात भिजवाने का अमल ख़त्म कर दिया। मुल्क भर के 29 तालीमी बोर्ड से असनाद की तस्दीक अब ऑनलाइन डेटा और पोर्टल शेयरिंग की बुनियाद पर की जाएगी। निज़ाम 16 फरवरी से मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के लिए लागू हो जाएगा।
महंगाई में कमी के हुकूमती दावे निस्फ से जायद पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिए। गैलप पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानी महंगाई की शरह में कमी के हुकूमती दावों से मुकम्मल तौर पर गैर मुत्तफिक हैं। मुखालिफत करने वालों की शरह ख़वातीन में 59% है। हुकूमती दावों के मुखालिफिन की ज़्यादा तादाद शहरों में बसने वाले अफराद की है। सिर्फ 7% पाकिस्तानी महंगाई में कमी की हुकूमती दावों से मुत्तफिक, 17% पाकिस्तानियों ने कोई जवाब देने से गुरेज किया। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जाली हुकूमत महंगाई में कमी की रट लगाकर आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, आवाम सड़कों पर आएंगे तो ऐवानों में जलजला बर्पा होगा। जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई। पिछले 8 फरवरी को बदतरीन धांधली की गई। मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। हमने अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी, हम सियासी जहाद के रास्ते पर कायम है। मेरी पार्लियामेंट आवाम है, जब तक मेरी ताकत जिंदा है किसी का बाप भी कादियानियत नहीं ला सकता। अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया मदारिस खत्म करने की साजिश कर रही है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की गई। पूरी दुनिया अमेरिका को ताकतवर समझ रही है। ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा पागल है। फलस्तीन फलस्तीनियों का था, है और रहेगा। सऊदी ममालिक ने अमेरिका की फलस्तीन से मुतालिक तजावीज़ इनके मुंह पर मार कर नई तारीख रकम कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जजेस तैनात करने का फैसला एडिशनल जज पंजाब की ज़िली अदलिया से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तैनातियों के लिए नामजदगियां 13 फरवरी तक तलब कर ली। जुडिशल कमीशन की जानिब से मेंबरान को आगाह कर दिया गया। कसीरुल कौमी बहरी मश्क 2025 शुरू। 60 ममालिक के बहरी जहाज और मुबस्सिरीन शरीक। मश्क में अमली मुजाहरे की तकरीब में पाक बहरिया के निडर और पुरअज़म जवानों ने इंसदाद दहशतगर्दी की मश्कों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। पाक बहरिया के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए साहिल पर उतरने और दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ कार्रवाई का मुजाहरा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ताकतवर बहरिया को समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। समुद्री तिजारत महफूज बनाना सबका इज्तिमाई फ़र्ज है। आलमी माशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। बहिरा हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। तकरीब से खिताब में सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि हम डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। हम डायलॉग के जरिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहिक़ ख़तरात से आगाही देना है। करक में ग्रैंड जिरगा मुसल्ह गिरोहों को इलाके से निकलने के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी। नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने का मुतालबा। एलामी के मुताबिक जिरगे ने करार दिया है कि रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फराहम करे ताकि मौसर कार्रवाई कर सकें। CTD को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। अच्छे और बुरे तालिबान की तफरीक ख़त्म करके बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों की निशानदही के बाद अवाम इनको सोशल बाइकआउट करे। 3 दिन के बाद कौम मुसल्ह लश्कर कशी पर मजबूर होगी। जिरगे में MNA शाहिद खटक, सूबाई वजीर मेजर सज्जाद बार कवाल को भी शिरकत। 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का एक और काफिला पाराचनार के लिए रवाना। इमदादी सामान में अशिया खुरनोश समेत दीगर ज़रूरी सामान शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की मुलाकात। पंजाब में पार्टी को मजबूत करने, सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। परवेज़ अशरफ की वज़ीर आला को कौमी असम्बली में सिंध के मसाइल पर बात करने की यकीन दहानी। तर्जुमान के मुताबिक सिंध में वफाकी हुकूमत के मंसूबों की सुस्त रवि पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना की पुर्तगाल में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मशक़ वस्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिमेश फाकनर से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मज़ीद पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राबितों और पाकिस्तानी तारिकीन वतन के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत के लिए UAE जाएंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में आलमी रहनुमा, पॉलिसी साज और माहिरीन शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समिट में कलीदी खिताब में मुल्क की मईशत, डिजिटल तरक्की और हुकूमती इस्लाहात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तंजीम का मुतालबा मान लिया। चार्टर ऑफ डिमांड का जायजा लेने के लिए आला इख्तियाराती कमेटी कायम। 6 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी के सरबराह राना सनाउल्लाह होंगे। सरकारी मुलाजमीन ने आज का एहतजाज और धरना मौखर कर दिया।
ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। इस्लामाबाद के इलाके शाहपुर में कचरा कुंडी से भरे वाहिद पार्क को दोबारा असली हालत में बहाल कर दिया गया। ABN न्यूज़ ने मामला उठाया तो CDA ने कचरा उठा लिया, शहरी खुश। इजाजत होगी। कराची में KMC की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। आमिर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं KMC की पार्किंग साइट से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी और ये फैसला अवामी मफाद में किया गया है। नोटिफिकेशन जारी करके शहरियों पर पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया जाएगा। कराची की 106 मरकजी सड़कों पर से 46 पार्किंग साइट से फीस वसूल नहीं की जाएगी, जबकि 25 टाउन्स और 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में पार्किंग फीस बरकरार रहेगी। प्रिंस करीम आगा खान मिस्र के शहर अस्वान में सुपुर्द खाक। गुज़िश्ता रोज़ पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में आखिरी रसूमात अदा की गई थीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सदर आसिफ अली ज़रदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना। सदर मुमलिकत प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान 5 फरवरी को 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे।